Hello, everyone. Now we study some important questions for board exam 2025 assessment paper third. चल इंफॉर्मेशन बेसिक इंफॉर्मेशन आपको पेपर में गिवन होंगी. Let's see. Two parallel plate capacitors XY have the same area of plate and same separation between plates. X has an air and Y has dielectric constant 2. Between plates, they are connected is to a battery 12 volt. The ratio of electrostatic energy stored in X and Y. Know that electrostatic energy half C square. You know that. For dielectric medium, potential by K. That's clear. This condition of energy x y half x square half cy y square half कैंसिल. तो देखो सी एक्स इक्वल टू सी एक्स इक्वल टू वी वाई बाई टू वाई बाई टू होल स्क्वायर. ओके स्क्वायर बाई फोर फोर अपॉन स्क्वायर कैंसिल वन. तो वन क्या ऑप्शन आ जाए सेकेंड. दैट्स क्लियर. ओके नेक्स्ट. A parallel plate capacitor is charged by connecting to a battery. Of the following will remain constant. The distance between the plate of capacitor is in this equation. तो देखिए बेटा, अगर हम डिस्टेंस को इंक्रीज करें क्या करा है आप. अगेन a parallel plate capacitor is charged by connecting to a battery. Which of the following will remain constant if the distance between plates कैपेसिटी क्या होगी भाई इक्वल टू हाफ सी स्क्वायर इक्वल टू अपॉन वी इक्वल टू. ओके तो इस कंडीशन में हम देखें जो पोटेंशियल अप्लाई किया है यहाँ पर कैपेसिटेंस भी चेंज हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज हो जाएगा, एनर्जी भी पर कांस्टेंट क्या रहेगा पोटेंशियल डिफरेंस. Sold wavelength of photoelectric emission from a material 600 nanometer. Sold wavelength है. Okay. I naught equal to h nu naught hc by the naught. Okay. तो देखिए for a material of the following illuminating source will emit photoelectrons. तो फ्रीक्वेंसी यहाँ फ्रीक्वेंसी देखो इंफ्रारेड. the wavelength of ultraviolet less than 4000 एंगस्ट्रॉम. तो फ्रीक्वेंसी जो है इसकी Q अल्ट्रावायलेट इज ग्रेटर देन एच न्यू नॉट. ग्रेटर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा. यहाँ पर आपके अल्ट्रावायलेट दोनों ऑप्शन आ जाएंगे. अल्ट्रावायलेट में करेक्ट ऑप्शन एंड दैट्स क्लियर. The kinetic energy of an electron. Kinetic energy of an electron 13.6 electron volt. What will be the potential energy? You know that potential energy equal to minus twice of kinetic energy from basic result minus 27.2 electron volt. Correct option A. थ्योरी से भी ले सकते हैं आप. काइनेटिक एनर्जी क्या है स्क्वायर अपॉन पर पोटेंशियल एनर्जी माइनस स्क्वायर अपॉन
R potential energy equal to minus twice of kinetic. तो अप्लाई किया बेटा मैंने. ओके, नेक्स्ट, match the column first and column second and choose the correct option. Diamagnetic substance. For diamagnetic substance, water and mercury both are diamagnetic substance from basic theory. Magnetism, paramagnetic material, liquid oxygen and sodium. Ferromagnetic substance, cobalt, nickel, ferromagnetic. तो remaining क्या हो गया? Superconductor. Your correct option, देखो फर्स्ट के लिए क्या आ रहा है, सेकंड. फर्स्ट के लिए सेकंड, सेकंड के लिए क्या आया है, फर्स्ट. थर्ड के लिए क्या आया है, फोर्थ. करेक्ट ऑप्शन आ गया. करेक्ट ऑप्शन क्या आ गया भैया, डी. दैट्स क्लियर. नेक्स्ट, इफ द रीडिंग ऑफ द वोल्टमीटर V1 40 वोल्ट. देखो ये प्रिंटिंग मिस्टेक है. क्वेश्चन का डायग्राम ये है बेटा. रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर V1 40 वोल्ट एंड द रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर V2 ये आपका 40 वोल्ट गिवन है. ये आपको फाइंड करना है. तो देखो यहाँ पर नॉट आपको क्या गिवन है, 50√2 वोल्ट. तो VRMS नॉट अपॉन √2 क्या आ जाएगा बेटा, 50 वोल्ट. तो V इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस LC स्क्वायर. आपका क्या है 50. यार आपको फाइंड करना है कितना, 40. स्क्वायरिंग बोथ साइड 2500 R स्क्वायर 3 R स्क्वायर इक्वल टू 900 R इक्वल टू 30 वोल्ट. तो आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा, 30 वोल्ट. क्वेश्चन के लिए डायग्राम ये वाला है और क्वेश्चन नंबर 6. दैट्स क्लियर. ये मिस्टेक है. अब क्वेश्चन नंबर 7 के लिए डायग्राम ये होगा. नंबर 7 के लिए ओके देखिए, a pure resistor is connected to an AC power source as shown in below. Of the following statements are true. Okay, the average current flowing through the circuit during one full cycle is 0. तो देखो ये only AC circuit containing only resistor. In this condition, average current for full cycle 0 होगा. Your correct option यही ऑप्शन आ जाएगा. The average current flowing through the circuit during one full cycle. So only फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है. दैट्स क्लियर. का डायग्राम प्रीवियस क्वेश्चन में. अब देखिए बेटा, प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ गामा रेज, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड वेव्स, अल्ट्रावायलेट रेज इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी. तो फ्रीक्वेंसीज के बेसिक रिजल्ट आपको मालूम होंगे फ्रॉम बेसिक थ्योरी. तो असेंडिंग ऑर्डर में हम देखें माइक्रोवेव सबसे कम होगा और गामा रेज की सबसे ज्यादा होगी. तो ये करेक्ट ऑप्शन ए. जो बेसिक रिजल्ट आपको पता होने चाहिए. स्टील वायर ऑफ लेंथ L एंड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट M बेंट द सेमी सर्किल. ये वायर है, इसका मैग्नेटिक डाइपोल M है, डिस्टेंस L है. सेमी सर्किल में बेंड करेंगे. डिस्टेंस बिटवीन एंड्स आपका क्या हो गया भाई, 2R. M डैश इक्वल टू प्लस माइनस M टू 2R. M क्या होगा, प्लस माइनस M L 12. अब 2R के लिए देखो, सरकमफ्रेंस आई R इक्वल टू L, R इक्वल टू L अपॉन पाई. M डैश इक्वल टू M 12 अपॉन पाई. ML को हम क्या लिख देंगे, कैपिटल M2M अपॉन पाई. तो योर करेक्ट ऑप्शन बी. दैट्स क्लियर. An electromagnetic wave of frequency 5 Hz from air to water, then ratio of the frequencies will be when electromagnetic wave, any wave passes from one medium to another medium. This condition frequency of wave remains same or constant. frequency में कभी कोई चेंज नहीं होता. तो frequency का रेशियो क्या होगा, 1:1. That's clear. A rectangular
a rectangular, a square, a circular and an elliptical loop all in xy plane, okay, are moving out of a uniform magnetic field with a constant velocity vector is equal to vi cap. The magnetic field is directed along the negative z direction. तो magnetic field क्या है? Minus k cap. Okay, the induced EMF during the passage हो गए of these loop out of the field region will not remains constant. Remains constant. किसके लिए constant नहीं होगा? तो देखो ये magnetic field है आपका. रेक्टेंगुलर कॉइल की हम बात करें, रेक्टेंगुलर कॉइल वेक्टर, हम लेंथ की बात करें तो ये आपका लेंथ हो गया एल वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर इक्वल टू एल साइन थीटा. यहाँ देखिए एल और बी दोनों कांस्टेंट है, तो रेक्टेंगुलर के लिए तो क्या हो गया कांस्टेंट. स्क्वायर की बात करें, स्क्वायर के लिए देखो ये वी वेक्टर आपका एल हो गया, एल वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू वी वेक्टर इक्वल टू वी एल साइन थीटा. कांस्टेंट हो गया, एल और वी कांस्टेंट है ना. नेक्स्ट सर्कुलर के लिए देखिए, सर्कुलर लिया स्मॉलेस्ट पार्ट के लिए नहीं, एल वेक्टर हो गया, लेकिन एल वेक्टर कंटिन्यू चेंज होगा ना. क्या होगा बेटा? होगा ई रन नॉट इक्वल टू कांस्टेंट. एलिप्टिकल की बात करें, एलिप्टिकल में भी देखिए वेक्टर लेंथ कंटिन्यू चेंज होगा, लेंथ चेंज होगा ना बेटा, लेंथ चेंज होगा, ई रन नॉट इक्वल टू कांस्टेंट. तो करेक्ट ऑप्शन सर्कुलर एंड एलिप्टिकल. दैट्स क्लियर. अब देखिए a short pulse of white light is incident from air to glass slab. At normal incident, after traveling through the slab, the first color to emerge is emerge. जिसका wavelength सबसे large होगा वो emerge हो जाएगा. तो lambda r with respect to another colors सबके लिए large होगा कि नहीं होगा ये? तो कौन सा emerge होगा? Red. That's clear. That's clear. भाई वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, एनर्जी सबसे कम होगी, तो कौन इमर्ज होगा? रेड वाला. और टू स्टेटमेंट आर गिवन, वन लेबल्ड एज assertion and other labeled are as region. Select the correct answer of these questions from the option given below. Okay, okay. Assertion: in a simple microscope the image form is virtual, erect and magnified. करेक्ट है भाई. सिंपल माइक्रोस्कोप में वर्चुअल इमेज होगा, एरेक्ट होगा और एंड मैग्नीफाइड होगा. देखो ऑब्जेक्ट placed between the focus and optical center of convex lens, the image form virtual, erect and magnified. में बेटा आपका region, assertion both are correct and region is the correct explanation of assertion from basic theory. Correct option क्या होगा आपका? A. That's clear. Correct option क्या होगा? A. That's clear. That's clear. That's clear. Saloni, got it beta? Very good. Okay. अब देखो नेक्स्ट देखिए, टू स्टेटमेंट देखिए. फोर्स postulate that the electrons in a stationary orbit around the nucleus do not radiate energy. करेक्ट है. रीजन देखिए, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स ऑल एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स रेडिएट एनर्जी. ये भी करेक्ट है. एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल एनर्जी का एमिट करेंगे हमेशा, तो इसमें क्या आ जाएगा?
both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. Okay, next, assertion. If two spherical conductor of different radii have the same surface charge density, then their electric field intensity will be equal. तो देखिए, फोर कंडक्टर इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वन इक्वल टू E2. स्फीयर्स के लिए बात करें तो आप ये कर सकते हैं E1 अपॉन E2, 1 अपॉन R1 स्क्वायर, 2 अपॉन R2 स्क्वायर, तो Q1 अपॉन Q2, R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर, सरफेस चार्ज डेंसिटी से इक्वल है देखो, तो Q1 अपॉन 4 पाई R1 स्क्वायर, 2 अपॉन 4 पाई R2 स्क्वायर, तो Q1 अपॉन Q2 इक्वल टू R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर, की वैल्यू पुट करेंगे, R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर, R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर, 1:1, यहाँ से आ गया कि नहीं आ गया? तो आपका असर्शन करेक्ट है भाई, सरफेस चार्ज डेंसिटी टोटल चार्ज अपॉन सरफेस एरिया, ये भी करेक्ट है, लेकिन ये प्रॉपरली इसको एक्सप्लेन नहीं करता है, क्योंकि एक्सप्लेन करने के लिए हमें ये टर्म भी यूज करना होगा, जिसमें आपका आंसर क्या आ जाएगा, बोथ assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion. Clear? और टू, ये देखिए नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू Huygens theory, no backward wave front is possible. Correct, because light waves always travel in forward direction, so we obtain secondary wave front in forward direction. Secondary wave front हमें नहीं मिलेगा, does not obtain in backward direction. करेक्ट है. रीजन देखिए, एम्पलीट्यूड ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स इज प्रोपोर्शनल टू 1 प्लस कॉस थीटा, ये भी करेक्ट है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन. बोथ assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. Clear? Okay, देखिए बेटा, two crystals C1 and C2 made of pure silicon are doped with arsenic. पेंटावेलेंट है, फिफ्थ ग्रुप से, एल्युमिनियम थर्ड ग्रुप से, तो आर्सेनिक की इंप्योरिटी मिलाएंगे, एन टाइप सेमीकंडक्टर, एल्युमिनियम की मिलाएंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर. ओके, आइडेंटिफाई एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स फॉर आर्सेनिक एन टाइप सेमीकंडक्टर, सॉरी हाँ, आर्सेनिक एन टाइप सेमीकंडक्टर, एल्युमिनियम पी टाइप सेमीकंडक्टर. व्हाई इज डोपिंग ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर नेसेसरी फॉर डोपिंग? इंक्रीजिंग the conductivity and increase the majority carrier charges in extrinsic semiconductors. डॉपिंग हम क्यों करते हैं? उसकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए, मेजॉरिटी कैरियर चार्जेज को इंक्रीज करने के लिए. दैट्स क्लियर. कैलकुलेट द एनर्जी रिलीज्ड absorbed in mega electron volt in the nuclear reaction. तो देखो, न्यूक्लियर रिएक्शन में मास डिफेक्ट डेल एम, मास डिफेक्ट आपको फाइंड करेंगे, तो m 1s2 प्लस m 1s3 माइनस m 1s2 माइनस m 1s2, तो डबल हो गया बेटा. ये देखिए, ये कितना हुआ, 1h2, सॉरी ये 1h1 1.07825 in atomic mass unit, 1s3.016049 माइनस, डबल कर लीजिए, 1s2 का कितना है 2.014102. ओके, कैलकुलेटर का यूज कर लेते हैं बेटा, देना है. तो देखिए 1.2785 प्लस 249, 4.023904 माइनस 2 into 0.04, $4.028
204. The mass of 2 1s2 minus mass of 1s3 into 101410 minus 5 minus 0.09. 4.028 1.00785 plus 4.014 minus 4.004 atomic binding energy is equal to del m square 0.0041. So direct 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. 931.5 931 से भी कर सकते हैं. क्या आ जाएगा आपका 0.880629 मेगा इलेक्ट्रॉन. दैट्स क्लियर. ओके. Next, define the term wavefront of light. A plane wavefront is propagating from denser medium to incident on the surface P1 P2 separating two media as shown in figure. अगर यहाँ में स्टिंग मिस्टेक है तो मैं खुद ड्रॉ कर देता हूँ. हाई गेन्स draw the secondary wavelets obtain the refracted wavefront in the diagram. Wavefront, when light particles are traveled in all possible direction about the point source, light source, linear source, कोई भी source हो सकता है. When light particles are continue oscillate about the source in all possible directions with the speed of light, then locus of light particles is called wavefront. When light source as a point source, then wavefront is spherical. Linear source, wavefront cylindrical. When point source or linear source are located at infinite, in this condition wavefront is planar wavefront. A refractor surface xy separated by denser to rarer medium. Okay, a planar wavefront AB incident on refractor surface xy with incident angle I. Three light rays 1, 2 and T3 are normally incident on planar wavefront incident angle I. Speed of light denser medium C1 and rarer medium C2. Wavefront consists with large number of light particles. Light particles are continuously oscillate about its mean position in all possible directions with the speed of light. The light particle traveled ct distance c1 t distance in time interval t. यहाँ स्पीड हमने क्या लिया है c1. denser to rarer after reflection bends away from the normal 1 dash. Similarly ये भी इस तरह से bend होगा बेटा 2 dash. Similarly
T3 dash. Okay. T2 dash. तो यहाँ पॉइंट ए के लिए ये टी डिस्टेंस में कितना, सॉरी टी टाइम इंटरवल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, T2 टी। यहाँ ये आर्क ड्रॉ कर देंगे और इससे ये नॉर्मल ड्रॉ, टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। ये आपका ए डैश बी डैश क्या आ गया, सेकेंडरी वेव फ्रंट आ जाएगा। और प्रॉपरली आप स्केल वगैरह का यूज करके ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना। ये सेकेंडरी वेव फ्रंट हो गया। तो ये एंगल आप ले लेते हैं आर, क्या होगा बेटा आर, यहाँ से देख सकते हैं साइन आई परपेंडिकुलर ए डैश अपॉन हाइपोटेनियस ए डैश 20 अपॉन ए डैश, यहाँ से लेंगे साइन आर परपेंडिकुलर 2t अपॉन ए डैश, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 साइन आई अपॉन साइन आर 1 अपॉन t2, so that n21 1 upon t2, it is represent the Snell's law. Incident ray, refracted ray, normal all are in same plane at incident point. सारा उसमें बेसिक थ्योरी में आपको ऑफलाइन क्लासेज में पूरा डिटेल एक्सप्लेन कर रखा है, यहाँ स्लाइटली मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। दैट्स क्लियर। देखो, वन नीड्स अ 3 वोल्ट पावर सप्लाई, आउटपुट वोल्टेज आपका क्या है वोल्ट, इनपुट वोल्टेज आपका क्या है 10 वोल्ट। बैटरी इन द लैब दैट शी कैन यूज, he was decide to make a voltage divider using this battery and two different resistors. The large value of resistors 300 ohm, what value of small resistance. The from basic result of potential divider not equal to in R2 upon R1 plus R2, not आपका क्या 3, कितना 10 वोल्ट, R2 आपको फाइंड करना है, R1 300, R2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए बेटा, 900 प्लस 3R2 10R2, तो 900 इक्वल टू 7R2, R2 इक्वल टू 900 अपॉन 7। इसको कैलकुलेट करेंगे आप, कैलकुलेटर का यूज कर लेते हैं। नाइन हंड्रेड डिवाइडेड बाय 7, ये आपका आ गया 128.57 ओम। दैट्स क्लियर, दैट्स क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, the image shows a setup of a device that used in increasing the diameter of light beam from a laser. So how a combination of a convex and concave lens can also be arranged to increase the diameter of light beam. तो देखिए इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, in this case O1। तो देखिए लाइट रे टेंट ऑफ कॉनकेव लेंस सर से रिफ्लेक्ट होगा भाई, तो बैक साइड में ड्रॉ करें आप तरह से ड्रॉ, ओके। ये आपका F1 F2, तो डिस्टेंस बिटवीन लेंसेज F2 माइनस F1, दैट्स क्लियर। डिस्टेंस बिटवीन लेंसेज F1 माइनस F2 तरह से ले सकते हैं आप, ओके ओके बेटा। F2 माइनस F1, दैट्स क्लियर। तरह से यूज करके और थोड़ा प्रॉपरली आप इसकी ड्राफ्टिंग कर सकते हैं। देखिए नाउ a glass beaker of height
10 centimeter, completely filled with water, refractive index N21 4/3, has a curved bottom which silvered as shown in below. Plastic coin remains submerged in water at depth. So देखो, you know that N21 real depth upon apparent depth. Okay, अब ये क्या कह रहा है? डैमेज फॉर्म बाय द कर्व मिरर सीन बाय द ऑब्जर्व एट अ डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर 4/3 डेप्थ अपरेंट क्या हो जाएगा बेटा 15, रियल डेप्थ क्या हो गया 20 सेंटीमीटर. मिरर फॉर्मूला 1/v इक्वल टू 1/u इक्वल टू 1/f. तो 1/v कितना है 10 सेंटीमीटर, क्या होगा आपका -5 f 1/f इक्वल टू 1/10 - 1/5 10 - 2 f इक्वल टू -10 सेंटीमीटर. दैट्स क्लियर. ओके, देखिए इस कंडीशन में आप देखें a potential barrier of 0.6 volt depletion layer region D 5 into 10 raised to the power -7 meter. So that barrier electric field B upon D equal to 0.6 upon 5 into 10 raised to the power -7. That's clear. तो 10 raised to the power 7 ऊपर लेंगे, 6 into 10 raised to the power 6 upon 5 1, तो 1.2 into 10 raised to the power 6 टन पर कूलम. ये बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया आपका. अब इसके लिए देखें आप 0 वोल्ट आउटपुट में हम कहाँ से लें 0 वोल्ट 5 वोल्ट इनपुट वोल्टेज 5 वोल्ट पर ले लें, क्या होगा V आउटपुट. किस लिए लिया जा रहा है आप देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं. ये applied across the input terminals of the circuit, assume that the diode is ideal. Name of the device which acting using unidirectional. यूनिडायरेक्शन के लिए क्या आ जाएगा भाई रिएक्टिफायर. और के लिए हम क्या कह देंगे रिएक्टिफायर आ जाएगा. तो वी ए माइनस वी बी बी आई -0 क्या हो जाएगा 5 वोल्ट 5 वोल्ट. तो आउटपुट क्या मिलेगा आपको 5 वोल्ट. दैट्स क्लियर. तो आउटपुट क्या हो जाएगा ये 2 वोल्ट 5 वोल्ट तरह से ड्रॉप. दैट्स क्लियर. डिफाइन टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ मेटल. टेम्परेचर कोफिशिएंट के लिए आप डिफाइन कर सकते हैं फ्रॉम बेसिक थ्योरी. आर टी इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी. ओके, आर टू इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा माइनस इक्वल टू R2 माइनस R1 on R1 of T star upon R1. Okay, if R1 is equal to 1 ohm, del T equal to 1 degree Celsius, then alpha is equal to del R. Is equal to del R. Temperature coefficient of resistance or metals numerically equal to the change in or increases in the resistance when temperature increases by a conductor. When temperature increases by 1 degree Celsius of a conductor has unit resistance. Again listen to me. Temperature coefficient of metals resistance defined as the change or increases in the resistance of metal when temperature increases by 1 degree Celsius of a metal has unit resistance. अब देखिए द रेजिस्टेंस ऑफ वायर 10 ओम 27 डिग्री सेल्सियस R1 इक्वल टू 10 ओम. फाइंड द रेजिस्टेंस 2 -73 डिग्री सेल्सियस. R2 आपको फाइंड करना है. मटेरियल ऑफ द वायर अल्फा 1.7 into 10⁻⁴ पर डिग्री सेल्सियस. तो देखिए बेटा यहां से फाइंड कर सकते हैं आप अल्फा 1.7 into 10⁻⁴
R2 आपको फाइंड करना है, R ले लें हम, R1 10 ओम, R1 10 ओम, T2 -73 -27 डिग्री सेल्सियस, दैट्स क्लियर। R -10 इक्वल टू माइनस हो गया 100 10 1.7 इंटू पर -4, ओके। तो देखिए ये 3 -1 -0.17 हो गया भाई, ओके। R इक्वल टू 10 -0.17 हो जाएगा 3 8 9.83 ohm, 9.8 ohm, that's clear, okay. So that the spherical mirror formula hold equally to the plane, प्लेन मिरर के लिए क्या, मिरर के लिए क्या होगा भाई, फोकल लेंथ f इक्वल टू इनफिनिट, तो 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/infinite, तो 1/v इक्वल टू -1/u, तो v इक्वल टू minus this condition, distance of object and distance of image both are equal to each other, तो spherical mirror के इक्वल बिहेव करेगा प्लेन मिरर के, that's clear, that's clear. Study of graph between electric field intensity versus the distance r, versus the distance r, आप देख सकते हैं, describe the nature of variation of, describe the nature of variation of electric field intensity between r0 to r less than equal to 2 upon r square implies that inversely proportional to r square when a point outside the sphere, get a straight line equal to kq upon capital R square, felt constant and maximum when a steady point on the surface. Third, equal to kq upon capital R cube into R, directly proportional to R when a steady point inside the, इसके लिए होगा नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर साइड देखिए क्या आ गया आपका, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, फ्रॉम कंडीशन नंबर थर्ड ये मैक्सिमम आ गया है, आउटसाइड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, इसके लिए होगा भाई नॉन कंडक्टिंग, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग, दैट्स क्लियर। देखिए the series LCR circuit is capacitive if the AC supply is at angular frequency omega 1 with the phase difference 30 degree, the circuit becomes inductive AC supply change to angular frequency omega t while keeping the maximum value of source voltage constant and corresponding phase angle becomes 530 degree. What is the change in power delivered? तो यहाँ देखिए RMS क्या हो गया भाई, कांस्टेंट हो गया, IRMS भी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, अब पावर भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, सारा कांस्टेंट, और बेसिक थ्योरी से आप डिटेल एनालिसिस कर सकते हैं, दैट्स क्लियर। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ मोमेंटम ऑफ अ फोटोन इन मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ वेवलेंथ, देखिए वेवलेंथ आपको गिवन है भैया 331.5 नैनोमीटर, यू नो दैट लैम्डा इक्वल टू h अपॉन p, तो p इक्वल टू h अपॉन लैम्डा, लैम्डा आपको गिवन है, यहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं, दैट्स क्लियर। How fast should a hydrogen atom travel in order to the same momentum as that of the photon in part? First, how fast should a hydrogen atom travel in order to have the same moment of the photon? देखिए फोटोन के लिए क्या होता है बेटा, इक्वल टू एच न्यू एंड इक्वल टू एम सी स्क्वायर इक्वल टू सी बाई लैम्डा एम सी मोमेंटम ऑफ फोटोन, लैम्डा इक्वल टू, सॉरी, तो मोमेंटम ऑफ फोटोन क्या हो गया, एमसी, एमसी हो गया ना, मोमेंटम फोटोन, यहां से आप कंपेयर करके हाउ फास्ट को एक्सप्लेन कर सकते हैं, दैट्स क्लियर। एन ऑब्जेक्ट placed in front
of a converging lens, that the conditions under which the magnification produced by the lens negative and be positive, a point object is placed open. तो इसके लिए आप बेसिक फार्मूला मिरर फार्मूला से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, जो बेसिक थ्योरी में आपने पढ़ रखा है उसी की तरह अलोंग उसी के अकॉर्डिंग आप एक्सप्लेन कर देंगे। दैट्स क्लियर। डिफाइन प्रिज्म एंगल। प्रिज्म एंगल के लिए आप यहां से एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको, ये टू रिफ्रैक्टिव सरफेस हो गए तो इसको हम क्या कहेंगे भाई, प्रिज्म एंगल। यहां से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉन्वेक्स सरफेस, a plano convex lens is made of glass refractive index 1.5, the radius of curvature of the convex surface 25 centimeter. Calculate the focal length of lens if an object is placed 50 centimeter in front to the lens. Find the nature and position of the lens maker formula 1 upon f n21 minus 1 equal to 1 upon r1 minus 1 upon r2 से सॉल्व कर सकते हैं भैया। n21 आपको गिवन है, r1 क्या हो जाएगा आपका इनफाइनाइट, r2 हम क्या ले लेंगे -25 सेंटीमीटर में पुट कर दीजिए ऑन -1/4 मीटर। सॉल्व कर सकते हैं आप 1 अपॉन एफ n21 1.5 minus 1 1 upon infinite 1/4 0.5 upon 4 f इक्वल टू 4 upon 0.5 क्या हो गया 8 मीटर 8 मीटर। दैट्स क्लियर। आर क्या है 1/4 है, ये r2 आएगा ना यहाँ, सॉरी बच्चों थोड़ी वैल्यू पुट मैंने कैलकुलेट तो सही किया है, वैल्यू रिवर्स करनी है ना अभी। 1 अपॉन r1 ये तो इनफाइनाइट हो गया, -4 हो जाएगा ना 1 अपॉन r2 1 अपॉन f 0.5 इंटू 4 क्या हुआ 2 f इक्वल टू 1 अपॉन 2 0.5 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो u डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट आपका क्या हो जाएगा इक्वल टू -50 सेंटीमीटर। दैट्स क्लियर। अब देखिए बेटा, रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस द फॉलोज। पावर फैक्टर करेक्शन इज अ मेथड, ये रीड करें आप। Read the following paragraph and answer the question that follows. Power factor correction method to reduce the lagging power factor in active load by fixing a high value of capacitor across the phase and natural line close to the load. When the voltage and current are engaged with each other in AC circuit, the energy from the source fully converted into another form to drive the load. In this case, power factor is unity. Power factor is unity. When the power factor drop, the system becomes as efficient. Active load current lags the voltage leading lagging power factor correction. Okay. तो ये इसके इस क्वेश्चन में आंसर्स जो हैं आपको
जो पैराग्राफ है वहां से सेलेक्ट करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मीन्ड बाय द पावर फैक्टर करेक्शन, पावर फैक्टर करेक्शन। ओके, व्हाट इज द मीन बाय पावर फैक्टर करेक्शन। तो देखिए, मेथड मेथड reduce lagging power factor in inductive load, in inductive load, the method to reduce the lagging power factor in inductive load। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ, ए। दैट्स क्लियर, दैट्स क्लियर। सेकंड में आ जाइए। देखिए, when the energy from the source fully converted into another from the power factor is unity। आपको दे रखा है, देखो सर, देखिए पैराग्राफ में, लोड दिस पावर फैक्टर इज यूनिटी, है ना, यूनिटी। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, बी। तो बहुत सिंपल, पैराग्राफ वाला क्वेश्चन तो बहुत सिंपल होता है, उसी पैराग्राफ में आंसर इंक्लूड होते हैं आपके। अब इसमें देखिए, थर्ड में, पावर कैपेसिटर्स फॉर पावर फैक्टर करेक्शन आर, पावर करेक्शन आर देखो ये दे रखा, पावर कैपेसिटर आर नॉन पोलराइज्ड मेटल फिल्म इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट टाइप कैपेसिटर, इलेक्ट्रोलाइट टाइप कैपेसिटर। क्या गया आपका आंसर, ओके। अब देखिए, और पावर कैपेसिटर फॉर पावर फैक्टर करेक्शन हैव लीडिंग और लैगिंग पावर फैक्टर डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ द कैपेसिटर। तो देखिए, लीडिंग पावर फैक्टर so that it will neutralize the lagging power factor। आंसर आ गया आपका, लीडिंग एंड लैगिंग। क्या गया, सीखा आपका, क्या आ गया, सी ऑप्शन आ गया। दैट्स क्लियर। सॉरी, आएगा लीडिंग पावर फैक्टर, ओके। पावर कैपेसिटर, कैपेसिटर के लिए क्या आ जाएगा, पैराग्राफ में देखिए, fully converted less, fully converted into another from drive load and what power drop, the system becomes less efficient, active load current lacks the voltage leading to lagging power factor is in neutral, close to neutral, close to load, close to load, so near to load, SCL, near to load। That's clear। अब देखिए, रीड द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड आंसर्स। के फॉलोइंग पैराग्राफ को रीड करना है, रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे उनका आंसर इस पैराग्राफ में ही इंक्लूड है, ओके। रीडिंग करें आप इसका। ओके,
देखिए बेटा, the heart of the radio transmitter of Marconi was, अब इसका आंसर देखिए, द स्पार्क कॉइल, द स्पार्क कॉइल, आपका आंसर आ गया स्पार्क कॉइल। Spark coil is a type of electrical generator, electrical transformer, static electricity generator, large capacitor। तो देखिए इसका आंसर देखिए आप पैराग्राफ में, देखो, इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर यूज्ड, का आंसर आ गया आपका इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर। अब इसके लिए देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। पैराग्राफ में देखिए, spark coil is type of electrical transformer used to produce high voltage pulse from low voltage, get the flux changes necessary to induce voltage secondary coil. The direct current in the primary coil is rapidly interpreted by a vibrating mechanical contact called interpreter. The sparks coils consist, क्या गया देखो, spark coils consist two coils related wire bound around a common iron core। क्या आंसर आ गया आपका? ओके, आपका क्या आ जाएगा भाई? Spark coil consists with coils in wire. Primary coil is made from relatively few turns, where the secondary coil consists of up to a million turns of the fine wires. Few turns क्या गया ना पूरा, अदर कॉइल सेकेंडरी टिपिकल, तब तो मिलियन टर्न्स। पूरा आंसर आ गया ना आपका। अब नेक्स्ट में आ जाइए, why most of the primary flux couples with the secondary in a spark coil। क्या देखिए, आंसर आपका पैराग्राफ में ही अवेलेबल है। Because the common core, कॉमन कोर, क्या गया, कॉमन कोर। ओके, अब इसमें देखिए, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंटरप्रेटर इन अ स्पार्क कॉइल। आप में आ जाइए, देखिए connected, disconnected, which rapidly contact break the current flowing to the primary coil। क्या आंसर आ गया आपका? वेरी गुड। ओके,
अब देखिए बेटा, explain briefly how Rutherford scattering of alpha particle by a target nucleus can provided information on the size of nucleus. ये तो आप बेसिक थ्योरी से लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, बेसिक थ्योरी में रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से आप सॉल्व कर सकते हैं, पूरा एक्सप्लेन कर सकते हैं जो आपको ऑफलाइन क्लास में बता रखा है. राइट द shortcoming of Rutherford atomic model, explain how these way were overcome by the postulate of Bohr's atomic model. सारा रिलेशंस आपको बेसिक थ्योरी में एक्सप्लेन कर सकता है, खुद से कर सकते हैं. तो आप फाइंड द रेशियो बिटवीन वेवलेंथ ऑफ मोस्ट energetic spectral line in the Balmer and Paschen series of the hydrogen spectrum. क्या आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू आर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर के लिए. स्टेट बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम mvr इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई. बेसिक थ्योरी से इनका डिटेल एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं आप लॉन्ग टाइप क्वेश्चन. Use Gauss's theorem, find the electric field due to uniformly charged infinitely. बेसिक थ्योरी से गाउस थ्योरी का डेरिवेशन है, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, पूरा आपको ऑफलाइन क्लास में बहुत डिटेल ब्रॉड फॉर्म में करा रखा है, सारा ड्राफ्टिंग करा रखा है, कंसीडरेशन वगैरह खुद से कर सकते हैं. An infinitely large thin plate sheet has uniform surface charge density. Obtain the expression for amount of work done. amount of work done के लिए आप क्या कर सकते हैं, माइनस क्यू वेक्टर डॉट ऑफ डी आर वेक्टर फ्रॉम इनफाइनाइट टू आर. तो EFI आप फाइंड करोगे, उसके लिए इंटीग्रेट करोगे, कैलकुलेशन करोगे, आपका रिजल्ट आ जाएगा. दैट्स क्लियर. इसी तरह से इस क्वेश्चन के लिए भी पूरा आप डिटेल कर सकते हैं. ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है भैया, ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है. माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप वगैरह सबके लिए एक्सप्लेन कर सकते हैं आप, ये खुद से करेंगे. ओके, थैंक यू.